हास्टेल सालब्रुम लुकुरंनि नांमानि मानेखनि हाति बारसा जरानि बागै मानेखनि बियाल ओंग्ला सागलायका हास्टे हाबांनि फाइसिंतै मामुइ संजानाय गेस पेट्रोल डिजेल नांकुकमानि मानेखनि मुंसा बियाल तंगला तै आसाम आगरतला लाहार कतर थांलायसु वातै नबार बेलायखे फाइमानि बागै किसा जरानि बागै लाहार थांलायसु मोथाक जागफानो हास्टेयाव नांमानि मानेखनि बियाल खोरै आसाम आगरतला लाहार स्नामजागै दङ बिनि यागुला हायनाहाय नांमानि मानेखनि रक तिरप्रा हास्टेयाव फाइ सकपायनाय सागलायका हाबांनि बोखाक्तै এখানে আমরা ওদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছি। আমাদের একজন অফিসারও গিয়ে পৌঁছেছেন। আমরা এক্ষুনি ইয়েও পেয়েছি, পিকচারও পেয়েছি। তারা অলরেডি গতকালকে রাত্রে থেকে কাজ শুরু করেছেন, ড্রজার এবং ট্রেজার সব মেশিন টেশিন নিয়ে। আমরা আজকে ওনাদের চিফ ইঞ্জিনিয়ার পিডব্লিউডির সঙ্গেও মেঘালয়ের কথা হয়েছে। ওনারা বলছেন যদি এখনও বৃষ্টি হচ্ছে কিন্তু আমাদের মতোই হালকা, তারা কাজ করছেন। যদি এরকম চলে দে উইল রিকোয়ার 48 আওয়ার্স টু থ্রো দ্য রোড। এটা তাদের কমিটমেন্ট। কিন্তু বেশি বৃষ্টি হলে আবার কাজ বন্ধ করতে হবে, কারণ সিমেন্টের কোনো কাজ করতে পারছেন না টোটালি বৃষ্টি স্টপ না হওয়ার কারণে। তা আপনাদের সঙ্গে আমরা মিলিত হয়েছি। আমি আবারও আপনাদের মাধ্যমে সবাইকে জানাতে চাই, এখনও আমাদের 7-8 দিনের পেট্রোল মজুত আছে, 5 থেকে 6 দিনের ডিজেল মজুত আছে, এবং যেহেতু শিলচরে ডিজেল অ্যাভেলেবল আছে তারা কিন্তু নিয়মিতভাবে শিলচর থেকে এখন ডিজেল পাঠাচ্ছেন। আজকেও আমরা 123 কেএল পেয়েছি, আগামীকালকেও আমরা অ্যাবাউট মোর দেন 200 কেএল পাবো। সুতরাং তারা চেষ্টা করছেন এটা যাতে, সুতরাং প্যানিকের কোনো স্কোপ নেই। এখনও আমরা আছি, আরও 6-7 দিন আমাদের স্টক আছে, এবং আশা করছি যদি 2-3 দিনের মধ্যে রাস্তা খুলে তাহলে এই সমস্যা যেটা এক্ষুনি হচ্ছে একটু প্যানিকের মতো সেটাও আর থাকবে না। তো কাজ যেহেতু শুরু হয়েছে, মেইনলি হচ্ছে বৃষ্টিটা নির্ভর। যদি বৃষ্টিটা বন্ধ হয় তো হয়ে যাবে। আর গ্যাসের ক্ষেত্রে গ্যাস তো বাংলাদেশ থেকে আসছে, আজকেও আসবে। সিকিউরিটি তারা চেয়েছিল, আমরা প্রোভাইড করেছি। তা প্রবলেম হবে না। আমাদের হাতে যে বাল্ক এবং মজুদ আছে তাতে আরও 15 দিনের স্টক আছে। চালের ক্ষেত্রে আপনাদের বলতে চাই, এই মাসের যে চাল প্রধানমন্ত্রী গরিব কল্যাণ যোজনায় বান্নি নর্মাল যে চাল, আমরা পুরো চাল দিয়ে দিয়েছি, সব রেশনে অলরেডি চলে গেছে, এবং আগামী মাসেরও একটা পোর্শন আমরা দিতে পারবো যে স্টক আছে। সুতরাং এক্ষেত্রেও মানে মানুষের প্যানিক হবার বা উদ্বিগ্ন হবার এক্ষুনি কোনো কারণ নেই। আমরা আমাদের নজর রাখছি, যতটুকু আমাদের চেষ্টা করার আছে যেভাবে যাতে আনইন্টারাপ্টেড হয়, অসুবিধা যাতে না হয় আমরা দেখছি যাতে করা যায়। তাছাড়াও মার্কেটের যে সেটা আমরা কালেকশন করেছি। আমরা মার্কেট, নর্মাল মার্কেট যেটা আছে তাতেও আমরা দেখেছি মোর দেন 1 মান্থের সব এসেন্সিয়াল কমোডিটিস তাদের কাছে আছে। তাছাড়াও বেশ কিছু ট্রাক আমাদের রাজ্যের এখন আছে, রাস্তাটা খুলবেই তারা মুভ করতে পারবে। এটা আমাদের কাছে সর্বশেষ ইয়ে। বাজারে কিছু কিছু অসাধু ব্যবসায়ী জিনিসের দাম অলরেডি বাড়িয়ে দিয়েছে। আমরা ইতিমধ্যেই ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট এবং সাব ডিভিশন অফিসারকে রিকোয়েস্ট করেছি তাদের যে মনিটরিং টিম আছে এগুলি মোবিলাইজ করার জন্য, সুপারভিশন করার জন্য। কিছু থাকেই অসাধু ব্যবসায়ী নজর রাখার জন্য। প্রশাসনের তরফ থেকে যদি নির্দিষ্ট একটা সাইনবোর্ড লাগিয়ে দেওয়া হতো যে আজকে এই বাজারে এই জিনিসের দাম এত করে, এটা তো ব্যবসায়ীরা নিয়ন্ত্রণ করেন, এটা তো এইভাবে সরকারের নির্দেশ করতে পারেন না। নিয়ম হলো আমার কি দামে অ্যাভেলেবল সেটা লিখে রাখ, এটা ব্যবসায়িক দায়িত্ব। কিন্তু লিখছে না তো স্যার। এটা আমরা ব্যবস্থা নিতে পারি, কিন্তু আমরা গিয়ে লিখবো এটা হয়। এটার প্রতিকূল ব্যবস্থা নিতে চলছে কি প্রশাসন? না, প্রতিকূল নয়, কিন্তু আমরা মনিটরিং টিমের দায়িত্বই আছে, যখন মনিটরিং হবে এটা হবে। আচ্ছা, রেল লাইনের কি কোনো খবর আছে, আপডেট? লাস্ট রেলের খবর যেটা আমাদের কাছে পাঠানো হয়েছে সেটা হয়েছে তারা তো মোটামুটি ঠিক করেছিল, কিন্তু আবার বর্ষাতে আবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সুতরাং এটা এখনো তারা শিওর হতে পারছে না কবে নাগাদ চালু হবে। 23/12/2020 থেকে ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড ইমার্জেন্সি সার্ভিস দপ্তর হয়ে গেছে। আগে ফায়ার সার্ভিস শুধু আগুন নেভাতো, এখন ফায়ার সার্ভিসের ফায়ার ফাইটাররা দুর্গত মানুষকে উদ্ধার করতে যায়। সাংবাদিক বন্ধুদের কাছে বলবো যে আমরা যে আজকে প্রিন্ট মিডিয়া এবং ইলেকট্রনিক্স মিডিয়াতে যে খবর প্রকাশিত হয়েছে তাতে আমার ফায়ার ফাইটার বন্ধুদের, কর্মীদের মনোবল অনেক বেড়ে গেছে। আপনারা জেনে খুশি হবেন যে ওরা এক শিফটের ডিউটি এসে বলছে যে না আমি আবার ডিউটি করবো, আমি বাড়িতে যাব না। এই যে একটা প্রচার আপনারা করেছেন, যে ওদের ছবি দিয়েছেন, যে সবগুলি পত্রিকাতে ফায়ার ফাইটারের ছবি আছে, সবগুলি ছবি দিয়েছেন, তাতে তাদের মনোবল অনেক বেড়ে গেছে। এটা ফায়ার সার্ভিসের একটা বিশেষ পাওনা। আপনারা একটা মানে পজিটিভ সিগন্যাল আপনারা এটা দিয়েছেন ফায়ার সার্ভিসের তরফ থেকে। আমরা স্যার যেটা বলেছেন, আত্মামিত্র ভলেন্টিয়ার
সিভিল ডিফেন্স ভলেন্টিয়ার এবং ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা মিলে আমরা একটা টিম তৈরি করেছি। যে কোনো সময় যে কোনো মুহূর্তে 24/7 আমরা কল পেলে দুর্গত মানুষের জন্য আমরা ঝাঁপিয়ে পড়বো। এটা আমরা সম্পূর্ণ প্রস্তুত। আপনাদের আবারও ধন্যবাদ যেভাবে আপনারা ফায়ার সার্ভিস ফায়ার ফাইটারদের হাইলাইট করেছেন, তারা যে কাজ করেছে ওই জন্য তাদের মনোবল অনেক বেড়ে গেছে। এই জন্য আমরা ফায়ার সার্ভিস দপ্তর থেকে আপনাদের কাছে ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাই। ইমার্জেন্সি ফায়ার এবং ইমার্জেন্সি সার্ভিস ডিপার্টমেন্ট থেকে আমরা রেস্কিউ অপারেশন চালু রেখেছি। অন কল যতগুলি কল আসছে আমরা একটা রেসপন্ড করছি। কালকেও আপনারা অলরেডি স্যার বলেছেন যে স্কুল ছাত্রদের আমরা রেস্কিউ করেছি। প্রায় 42 জন টোটাল স্কুল স্টুডেন্ট গার্জিয়ান এবং টিচারকে আমরা কালকে রেস্কিউ করেছি আরএমএস চৌনি এলাকা থেকে। আর আজকে ইস্ট প্রতাপগড় এবং চন্দ্রপুরে মোট 119 জনকে রেস্কিউ করা হয়েছে। আমাদের কাছে কোনো কল আসলে এটা 112তে হতে পারে বা আমরা ফায়ার সার্ভিসের ডিপার্টমেন্টের যে নাম্বার আছে ওখানে কল করতে পারেন বা অন্যান্য নাম্বারে করলেও আমরা পেয়ে যাব। তো এই আমরা 24/7 সার্ভিসের জন্য আমরা মানে অ্যাভেলেবল আছি যে কোনো প্রকার রেস্কিউ করার জন্য। কিন্তু ডিটেলস এর চেয়ে বেশি একটু ডাইরেক্ট বলতে হবে। मुख्यमंत्री उन्होंने भी एक पूरी सिचुएशन का स्टॉक लेने के लिए एक हाई लेवल मीटिंग किया दोपहर में, और उसमें क्या रिलीफ मेजर्स दिए जा रहे हैं उसका पूरा रिव्यू करके उन्होंने भी अपनी गाइडेंस दिए, डायरेक्शन दिए कि आगे और क्या किया जाना चाहिए। और अभी तक हमारे पास जो पोजीशन है, वेस्ट त्रिपुरा में टोटल 37 कैंप्स खुल गए हैं। कल 8 कैंप थे जैसे हम लोगों ने रिपोर्ट किया था, फिर आज दिन भर और बढ़े, सुबह करीब 20 थे, अब 37 हैं, जिसमें सदर में 34 हैं, जिरानिया में 3 हैं। टोटल 1958 फैमिलीज इन 37 कैंप्स में हैं। एक नॉर्थ त्रिपुरा से भी खबर आई कि वहाँ एक कैंप खोला गया, 92 फैमिलीज वहाँ हैं। खोवाई में एक कैंप है 7 फैमिलीज का। टोटल पूरे राज्य में हम देखें तो 39 कैंप्स 2057 फैमिलीज वो अभी रिलीफ कैंप में हैं। बाकी और स्थिति पर पूरी नज़र बनाए हुए है प्रशासन, जो लोकल एसडीएम डीएम है वो देख रहे हैं, जहाँ भी जो सहायता चाहिए उनको दिया जा रहा है। और जो रिलीफ कैंप्स है उनमें जनरली जो स्कूल में ही है तो वहाँ पे खाने की व्यवस्था उस स्कूल में ही की जा रही है, नहीं तो पैकेट उनको देने की व्यवस्था हो रही है। पास के किसी होटल से खाने की व्यवस्था टैग की जा रही है। ड्रिंकिंग वाटर के लिए जो पानी की बोतल हैं, जो कैन होता है कंटेनर, वो दिया जा रहा है। और वहाँ पे सैनिटेशन फैसिलिटी रहे, साफ स्वच्छता बनी रहे, उसके लिए टॉयलेट्स वगैरह का भी ध्यान दिया जा रहा है। इसके अलावा क्योंकि जो परिवार आ रहे हैं रिलीफ कैंप में, उनमें कहीं कोई किस टाइप की कोई हेल्थ रिलेटेड इश्यूज ना तो नहीं है, उसके लिए डॉक्टर्स भी जाके देख रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, ज़रूरत हो रही तो उनमें दवाई का डिस्ट्रीब्यूशन भी हो रहा है। और लोकल लेवल पे इसलिए जो इन रिलीफ कैंप में सहायता देनी वो दी जा रही। और इसके अलावा जो उन लोगों को रिलीफ देना होगा इमीडिएट सिचुएशन को देखते हुए एसडीआरएफ की जो गाइडलाइंस हैं हम लोग की, उसके रिलीफ गाइडलाइन के साथ जो भी परिवार हैं जिनके घरों के सामान की क्षति हुई है, भारी क्षति हुई है, उनको एसडीआरएफ गाइडलाइन के हिसाब से उनको हेल्प की जाएगी। और जिन लोग के घरों में अगर अभी ऐसा कोई घरों के डैमेज की पूरी तरह डैमेज हो गया, अभी ऐसी रिपोर्ट नहीं आई, अब जब पानी थोड़ा कम होगा, रिसीड करेगा, तो उसके बारे में भी डिटेल फील्ड इंक्वायरी होगी। तहसीलदार वगैरह को बोला हुआ है, वो जाके जहाँ भी सिचुएशन उसकी इंक्वायरी करके असेस करेंगे किसका कितना डैमेज है, और फिर वो एसडीआरएफ गाइडलाइंस उनको हेल्प दी जाएगी। डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट देखिए आपका सामने उपस्थित हुई थी। हम मेरे साथ सेक्रेटरी होम हैं सुदीदी चौधरी, सेक्रेटरी एग्रीकल्चर फायर सर्विस अपूर रॉय हैं, साथ में अनिंद्या भट्टाचार्य जी डायरेक्टर फायर सर्विस, और स्टेट प्रोजेक्ट ऑफिसर शरद दास डिजास्टर मैनेजमेंट का जो देखते हैं। कल जैसे आप जानते हैं कल से काफ़ी तेज़ वृष्टि हो रही है अगरतला में, जिसकी वजह से सिटी के कई इलाकों में कल पानी भर गया था। कल भी हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था तो आप लोगों को बताया था कि क्या व्यवस्था प्रशासन पक्ष की तरफ से सरकार की तरफ से लिए जा रहे हैं। तो उसी प्रक्रिया में जैसे आप जानते हैं कल कई जगह शहर में पानी भर गया था रात्रि में, फिर जब बारिश बंद हुई शाम तो धीरे धीरे उसको पंप्स के थ्रू ड्रेन आउट कर दिया गया, तो रात तक सभी
इलाके मोटरेबल हो गए थे, जो आपके IGM चौमनी या रविंद्र भवन के आसपास जो मेन सिटी के एरिया थे उनका पानी पंप के थ्रू बाहर कर दिया गया था। लेकिन क्योंकि जो हावड़ा नदी है उसके जो ऊपर एरियाज हैं, कैचमेंट एरियाज में, वहाँ पे वृष्टि होने के कारण तो वाटर लेवल हावड़ा रिवर का रात में बढ़ना शुरू हुआ और कल दिन से बढ़ रहा था, धीरे धीरे करके रात में वो जो उसका डेंजर लेवल है 10.5 मीटर का, उसको भी क्रॉस करके ऊपर हो गया। तो रात में ही DM वेस्ट सदर SDM उन्होंने विजिट किया इलाका का जो लो लाइंग एरियाज हैं उनको विजिट करके वहाँ पे रिलीफ कैंप खुलवाने की पूरी प्रोसेस को खुद वो किया, सुपरवाइज किया और जो जो फैमिली थी उन लोग के वहाँ पे खाने के पानी के उसकी व्यवस्था पूरी की गई। फिर उसके बाद आज सुबह से सिचुएशन में थोड़ा कंट्रोल है क्योंकि पानी उसके बाद बंद रहा, अभी भी बारिश उतना तेज नहीं है तो अभी कंट्रोल में है। लेकिन क्योंकि जो पानी भर गया था दिन में कल जो आया उसकी वजह से कई जगह पानी हावड़ा नदी के साथ जो हैबिटेशंस हैं, जो कॉलोनीज हैं, उनमें चला गया। तो आज सुबह सुबह एक टीम विजिट भी करके आए थे, हम खुद गए थे, साथ में सेक्रेटरी अर्बन डेवलपमेंट, स्टेट प्रोजेक्ट ऑफिसर थे, DM थे, SDM थे। हम लोगों ने उन एरियाज का विजिट किया जिसमें करीब जो भी फ्लड अफेक्टेड एरिया थे, बटतला, जवाहर ब्रिज, प्रतापगढ़, बलदा, खाल, श्रीलंका बस्ती, चंद्रपुर, उन सब का जाके हम लोगों ने जायजा किया। वहाँ पे लोग को क्या समस्याएं हैं, उसके लिए क्या और सहायता रिलीफ मेजर देने, उस बारे में पूरा देखा। और टीम्स जैसे कल भी हमने बताया था, इस सब काम में हमारे पास NDRF, SDRF, आपदा मित्र, CD वॉलंटियर्स, फायर सर्विस की टीम और फिर जो जिला और सब रीजनल ऑफिसर की टीम है, वो सब लोग अपने अपने एरिया में डिवाइड करके रिलीफ मेजर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये ओवरऑल पोजीशन है, प्रशासन ने नज़र बनाए रखी हुई है सिचुएशन पे और जैसे जहाँ जो सहायता की आवश्यकता प्रयास है पूरा कि उनको इमीडिएटली हेल्प मिले। कल भी हम लोगों ने टोल फ्री नंबर्स बताए थे, आज भी मैं रिपीट कर देता हूँ, किसी को भी अगर हेल्प चाहिए, उनको कोई सहायता चाहिए तो उसमें एक टोल फ्री नंबर जो वेस्ट त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट का है 1077, स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर का 1070 है, फिर इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सर्विसेज ERSS वो 112 पर कर सकते हैं। AMC ने जो नगर अपनी तरफ से पूरी व्यवस्था ली हुई है उसका एक व्हाट्सएप नंबर है 9863201665, उस पर भी खबर कर सकते हैं। बिजली को लेके, इलेक्ट्रिसिटी को लेकर कोई इश्यूज हैं उसके लिए कॉल सेंटर अलग से है 1912, नहीं तो 9863596083। तो ये अभी तक की परिस्थिति है। वाटर रिसोर्सेज की तरफ से जो एम्बैंकमेंट को लेके कहीं अगर इश्यूज हैं तो वो नज़र बनाए हुए हैं। लगातार वाटर लेवल अलग अलग नदियों में किस वे में बढ़ रहा है या कम हो रहा है उस पर ध्यान रख रहे हैं। अभी जो हावड़ा नदी है जैसे हमने बताया उसका 10.87 तक हाईएस्ट मीटर तक लेवल गया था सुबह, उसके बाद अब पानी का लेवल अब धीरे धीरे कम होना शुरू हुआ है। अभी 10.72 अभी 4:30 बजे की जो रीडिंग है उसमें रिपोर्ट हुई है। तो अभी अगर सिचुएशन कंट्रोल में रहती है, बारिश अभी तो हल्का हल्का हो रहा है, तो अगर ऐसे ही रहेगा तो सिचुएशन और नियंत्रण में आ जाएगी। सर अभी तक डेंजरस पॉइंट कोई निकला है? कितना डेंजरस पॉइंट है? नहीं, डेंजरस पॉइंट जहाँ जहाँ पे भी पानी का भराव है उन्हीं पे हमें नजर रखनी कि वहाँ पे जो फैमिलीज हैं अगर घरों में फंसी हुई तो उनको बाहर निकाला जाए। उसके लिए बोट लगी हुई है। सुबह भी जैसे हम लोग गए थे तो कुछ कुछ जगह और बोट्स की जरूरत थी तो उनको भी इमीडिएटली मोबिलाइज किया गया। तो अभी आज की जो परिस्थिति है 29 बोट्स लगी हुई हैं, जिसमें SDM की तरफ से 14 बोट दी गई, NDRF ने 4 दी है, AMC की तरफ से 4 हैं, TSR की 2 हैं, आसाम राइफल्स को भी हम लोगों ने आज मोबिलाइज किया, वो भी अब रिलीफ मेजर्स में लग गए हैं, उन्होंने भी 5 बोट प्रोवाइड की हैं। तो सब मिलके जहाँ भी अगर कहीं जरूरत है लोगों को निकालने की और बोट की व्यवस्था की करनी है तो वो किया जाए। सर कोई इंसिडेंट का कोई खबर है?
इंसिडेंट तो मतलब किस टाइप का इंसिडेंट? तो ये जो डिजास्टर के ये जो डिजास्टर में कोई इंसिडेंट नहीं, एक्सीडेंट ऐसे हुआ, नहीं ऐसा इंसिडेंट तो कोई नहीं है। एक डेड बॉडी मिला था जो महिला का। चंद्रपुर का आसपास। तो वो महिला का क्या खबर है? नहीं, उसका वैसे बता सकते, उसका जो खबर मिला है वो एक्चुअली में एपिलेप्सी के एक पेशेंट हैं। वो अभी जीबी हॉस्पिटल में जो फीमेल मेडिसिन वार्ड है वहाँ पे भर्ती है। भाटी अभयनगर तो में लेकिन उनका मतलब इसलिए वो एक नॉर्मल केस है, उसको इससे जोड़ के देखने का वो नहीं है, मतलब वो एक अलग अपना जो नेचुरल उनका ट्रीटमेंट चल रहा है वो उसमें है। भाटी अभयनगर में भी एक इंसिडेंट हुआ है, इससे कोई पानी के अंदर नहीं, अभी तक कोई इसकी वजह से कोई कैजुअलिटी रिपोर्टेड नहीं है। ब्लड अफेक्टेड कोई अभी कैजुअलिटी अभी तक नहीं है। सर टोटल कितने लोग इस डिजास्टर में काज कर रहे हैं? एनडीआरएफ और टीएसआर हाँ, जैसे मैंने बताया ना, 6 अलग अलग टीम हम कह सकते हैं। एनडीआरएफ तो है, एसडीआरएफ है जिसमें हम लोग स्टेट टीएसआर की प्लाटून होती हैं, एसडीआरएफ में वो काम कर रही हैं। फिर आपदा मित्र हैं जिनको हम लोग लोकल कम्युनिटी से वॉलंटियर्स लेकर उनको प्रशिक्षण दे रहे हैं, तो वो हैं। सीडी वॉलंटियर्स, सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स वो हैं। फायर सर्विस की कल जैसे आपने देखा उन्होंने स्कूल के बच्चों को बचाया था और इलाकों से भी लोगों को निकालने के लिए सहायता की थी, वो टीम लगी हुई है। अब आसाम राइफल को भी हमने ले लिया है। तो जहाँ और इसके अलावा बाकी इलाके में हम लोग में जो वॉलंटियर्स हैं, जो हम लोग समय समय पर प्रशिक्षण देते रहते हैं, लोगों को अवेयरनेस कैंप्स के थ्रू ट्रेनिंग देते हैं, तो अपने क्षमता के हिसाब से अलग अलग लोग वो भी सहायता कर रहे हैं। जहाँ भी ये रिलीफ कैंप खुले हैं वहाँ पे पब्लिक फंक्शनरीज जो है उस इलाके के, उनकी भी सहायता ली जा रही है कि कैसे लोगों को जल्दी से जल्दी रिलीफ दिया जा सके। सर हावड़ा का जो बांध है ना सर, ये पानी, ये इसका कोई खबर है, कोई लीकेज का? एक अफवाह फैल रहा है जासूसा एरिया में, जो लीक एक दो लीकेज मिला है। एम्बार्कमेंट में कोई वीकनेस है क्या? इसका अभी एक्चुअली वो उसको चेक करा रहे हैं कि जो बात है वो कितना ठीक है। वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट पे नज़र रखे हुए, लेकिन जहाँ होगा वो उसको इमीडिएटली व्यवस्था लेंगे। अभी उसकी भी कोई पुष्टि नहीं हुई है। ओके सर।